ناظرین آداب، ایک بار پھر حاضر خدمت ہے ہماری خاص پیشکش مہاراشٹر 2015 کے ساتھ کیا رہا خاص۔ اس خصوصی پروگرام میں ہم سال 2015 میں کیا رہا خاص، کون کون سی اہم سیاسی سرگرمیاں رہیں 2015 میں اور اقلیتوں کو لے کر کیا خاص اقدامات کیے گئے، کون کون سے مسائل زیر بحث آئے، اسی پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ تو ناظرین، مہاراشٹر میں 2015 میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے نہ صرف عوام کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی بلکہ قومی سطح پر بھی یہ بحث کا موضوع بنے۔ 15 سال بعد مہاراشٹر میں بی جے پی کو بڑی اکثریت کے ساتھ کامیابی ملی، لیکن 2015 میں حکومت کی اتحادی جماعت کے ساتھ جو رشتہ رہا اس سے ریاست کی سیاست پہ کافی ہلچل دیکھنے کو ملی۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کے تعلق سے لیے گئے حکومت کے فیصلے بھی کافی تنازعات سے بھرے ہی رہے، جس میں گوونش ہتیا بند قانون کا نفاذ کیا گیا، مدارس کو اسکولی زمرے سے باہر رکھا گیا، اقلیتوں کے لیے ڈی ریڈیکلائزیشن ڈرائیو تیار کرنے کے ذریعے انہیں شدت پسند کے طور پر دیکھنا وغیرہ شامل ہے۔ تو چلیے نظر ڈالتے ہیں 2015 میں ریاست کے مسلمانوں کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر۔ سال 2015 کی شروعات مہاراشٹر میں نئی بی جے پی شیو سینا حکومت کے ساتھ ہوئی، لیکن ریاست میں مسلم آبادی کو ایک کے بعد ایک کئی مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اقتدار میں آتے ہی حکومت نے کچھ ایسے فیصلے لے لیے جس سے پارٹی کا اپنا ہندوتو کا ایجنڈا برقرار رہے۔ اگرچہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ بلند کیا گیا، لیکن مسلمانوں کو بجائے ترقی دلانے کے صرف تنازعات میں ہی گھسیٹا گیا۔ ریاست کے مسلمانوں خصوصاً قریش برادری کو اس وقت جھٹکا لگا جب حکومت نے گوکشی قانون نافذ کرنے کا فیصلہ لیا۔ دراصل ریاست میں مہاراشٹر اینیمل پرزرویشن ایکٹ 1976 کے تحت پہلے ہی گائے کے ذبیحے پر پابندی عائد تھی، لیکن فڑنویس حکومت نے اس بل میں ترمیم کے لیے زیر التوا درخواست کو دوبارہ صدر جمہوریہ کے پاس بھیج کر گوکشی قانون نافذ کروایا۔ اس قانون کے نتیجے میں مہاراشٹر میں بڑی تعداد اور خصوصاً قریش برادری بے روزگار ہو گئی اور اس سے فرقے وارانہ منافرت کو بھی مزید ہوا ملی۔ کانگریس این سی پی حکومت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے 5% ریزرویشن کے لیے پاس کیے گئے آرڈیننس کو بی جے پی شیو سینا حکومت نے منسوخ کروایا، جبکہ اسمبلی میں مراٹھا سماج کو 16% ریزرویشن دینے کی حمایت کی۔ حکومت کی اس جانبداری کو ہندوتو کے ایجنڈے کو تھوپنے کی جانب مزید ایک اقدام کے طور پر دیکھا گیا۔ حالیہ ناگپور اسمبلی سیشن میں دیویندر فڑنویس نے 16 دسمبر کو مسلم ریزرویشن کے متعلق حزب اختلاف کو جواب دیتے ہوئے مذہب کی بنیاد پر مسلم ریزرویشن فراہم کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور وزیر اعلیٰ مہاراشٹر کی اس صاف بیانی سے ریاست کے مسلمانوں کی مسلم ریزرویشن کے متعلق امیدوں پر گویا پانی پھر گیا۔ جولائی 2015 ریاست کے وزیر برائے اقلیتی امور ایکناتھ کھڑسے نے مہاراشٹر میں مدارس کو اسکول کے زمرے سے باہر رکھنے کا اعلان کیا۔ حکومت کے مطابق آئین کی روح سے ہر بچے کو فارمل ایجوکیشن حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن مہاراشٹر میں جو مدارس صرف مذہبی تعلیم مہیا کروا رہے ہیں انہیں اسکول کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ حالانکہ مسلمانوں نے اسے حکومت کا سوتیلا رویہ قرار دیا، ساتھ ہی الزام لگایا کہ حکومت مدارس کی جدید کاری کے ذریعے مدارس میں دخل اندازی کرنا چاہتی ہے۔ سال 2015 میں فڑنویس حکومت میں اقلیتی فلاحی اداروں کا حال بھی بہت اچھا نہیں رہا۔
हुकूमत महाराष्ट्र ने 15 जनवरी को अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के नाम का ऐलान किया। जलगांव जिले से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद हुसैन खान को अक़लियती कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया, लेकिन हुकूमत महाराष्ट्र के जरिए तश्कील दिए गए अक़लियती कमीशन में साल 2015 के इख्तिताम पर किसी अरकान की नामजदगी अमल में नहीं आई। हुकूमत महाराष्ट्र ने 2 सितंबर को उर्दू एकेडमी की तश्कील का ऐलान किया, लेकिन 4 सितंबर को बीजेपी अक़लियती मोर्चे से वाबस्ता अब्दुल रऊफ खान को उर्दू एकेडमी का कारगुजार सदर मुकर्रर किया गया और हुकूमत के फैसले से रियासत में मुस्लिम अदीबों में सख्त नाराजगी देखी गई। 30 जुलाई को मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मुलजिम याकूब मेमन को नागपुर जेल में फांसी दे दी गई। उसी रोज याकूब मेमन की जिस्द खाकी को मुंबई लाया गया और मुंबई के मेरीन लाइन्स बड़ा कब्रिस्तान में उसकी तदफीन अमल में आई। याकूब मेमन की तदफीन में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। हुकूमत महाराष्ट्र को लगने लगा कि मुसलमानों में शिद्दत पसंदी को कम करने की जरूरत है। 8 अक्टूबर को अखबारों में खबर शाये हुई कि हुकूमत अक़लियतों में शिद्दत पसंदी को कम करने के लिए डी रेडिकलाइजेशन ड्राइव चलाएगी, लेकिन इससे अभी तक अमली जामा नहीं पहना पाई है। हुकूमत महाराष्ट्र के ऐलान पर यकीन किया जाए तो महकमा दाखिला, अक़लियती उमूर और दीगर महकमों के तवस्सुत और मदद के सहारे हुकूमत डी रेडिकलाइजेशन की पॉलिसी तरतीब देगी। रियासत और मुल्क की तरक्की के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि सबके साथ यकसानियत बरती जाए, यकसा सलूक रवा रखा जाए और इसीलिए हुकूमत को चाहिए कि वो सबका साथ सबका विकास के नारे को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज को भी अपने एतमाद में ले और यही नहीं बल्कि उनकी फलाह व बहबूदी के लिए मौसर इक़दामात भी उठाए। मुंबई से ईटीवी न्यूज़ के लिए मुहिउद्दीन की खास रिपोर्ट। उधर साल 2015 जाते जाते मुंबई और महाराष्ट्र के लिए कई मुजरिमाना वाक़यात तारीख के सफ़ात में दर्ज कर गया। महाराष्ट्र में कुछ ऐसे जराइम पेश आए जिन्होंने एक तरफ जहां रिश्तों को पामाल कर दिया, वहीं दूसरी तरफ पुलिस को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। नाज़रीन, आज हम जुर्म के इन चंद वाक़यात पर तफसीली रोशनी डालेंगे जो कि इस साल मीडिया में छाए रहे और बन गए न्यूज़ ऑफ द ईयर। टैगलाइन हमेशा आपकी सेवा में, लेकिन मुंबईकर की खिदमत में हर वक्त मुस्तैद रहने वाली मुंबई पुलिस के लिए साल 2015 काफ़ी अहम रहा। मुद्दत से चले आ रहे कुछ केस को सॉल्व करने में मुंबई पुलिस को कामयाबी मिली, तो कई केस ऐसे भी थे जिसने मुंबई पुलिस के पसीने निकाल दिए। मजदूर लीडर गोविंद पानसरे का दिन दहाड़े कत्ल, शीना बोरा केस, मालवनी में जहरीली शराब पीने की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत, राधे माँ की रंगारंग दुनिया, बॉलीवुड अदाकार जिया खान की खुदकुशी केस में आया नया मोड़, और डॉन छोटा राजन की तवील अरसे बाद मलेशिया से गिरफ्तारी। इन सब के बारे में हम आपको आगे तफसील से बताएंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे साल 2015 के उन चुनिंदा वाक़यात के बारे में जिन पर मीडिया के साथ साथ मुल्क और दुनिया भर की नजरें टिकी रही। याकूब को दी गई फांसी। 1993 बम धमाके के मुलजिम याकूब मेमन को इसी साल यानी 2015 में 22 साल बाद 31 जुलाई को नागपुर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। याकूब की फांसी इस साल सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। अदलिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में शब 4 बजे तक याकूब केस की समाअत हुई। 2 बार सदर जमहूरिया ने याकूब की मर्सी पिटीशन मुस्तरद की। आखिरी वक्त तक याकूब का केस किसी फिल्मी क्लाइमेक्स की तरह दिलचस्प होता चला गया। रात के 4 बजे तक नाजरीन टीवी सेट पर नजर गड़ाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते रहे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने याकूब को फांसी दिए जाने का फरमान जारी कर दिया।
सलमान खान को मिली राहत। साल 2002 से चला आ रहा सलमान खान का हिट एंड रन केस का मामला भी 2015 में आकर सुलझ गया। यह मामला भी 2015 में सबसे ज्यादा सुर्खियां हासिल करने में कामयाब रहा। याकूब के लिए साल 2015 मौत का पैगाम लेकर आया, तो वहीं इसी साल बॉलीवुड के भाईजान की झोली खुशियों से भर गई। 13 साल से हिट एंड रन केस झेल रहे सलमान को सबूतों की अदम मौजूदगी में हाई कोर्ट ने 10 दिसंबर को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। लेकिन साल के जाते जाते महाराष्ट्र हुकूमत ने ऐलान किया कि वो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखती है। शीना बोरा कत्ल मामला। हाई प्रोफाइल शीना बोरा केस भी 2015 में तवज्जो का मरकज रहा। मुंबई पुलिस के साबिक कमिश्नर राकेश मारिया ने इस केस को क्रैक किया और फिर तहकीकात में सामने निकल कर आया ऐसा सच जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस केस ने माँ बेटी के पाक और मुकद्दस रिश्ते को भी शर्मसार और दागदार किया। पता चला कि पैसे और शोहरत के नशे में चूर इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी ही बेटी शीना बोरा को बड़े ही बेरहमी से कत्ल करवा दिया। इस केस में इंद्रानी मुखर्जी, संजीव खन्ना, इंद्रानी के ड्राइवर श्यामू राय की गिरफ्तारी भी हुई। इस केस में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने की वजह से राकेश मारिया को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। फिलहाल ये मामला सीबीआई के सुपुर्द है और मामले की जांच चल रही है। छोटा राजन की हुई गिरफ्तारी। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड की फहरिस्त में से एक अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन के लिए भी 2015 गमों की बारिश लेकर आया। भारतीय एजेंसियों के ताउन से इंडोनेशिया के बाली पुलिस ने इसे उस वक्त धर दबोचा जब वो बाली एयरपोर्ट से दुबई जाने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद डॉन को डिपोर्ट कर भारतीय एजेंसियों ने हिंदुस्तान लाया। इससे मुंसलिक तमाम मामलात मुंबई पुलिस से मुंतकिल कर सीबीआई के हवाले कर दिए गए हैं। फिलहाल राजन अदालती हिरासत में हाई सिक्योरिटी के दरमियान दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। मालवनी में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों अमवात। साल 2015 में मुंबई का मालवनी इलाका सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। 19 जून को इस इलाके में जहरीली शराब पीने से 109 अफराद की मौत हो गई और 74 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 14 अफराद को गिरफ्तार किया और सैकड़ों लीटर जहरीली शराब भी जब्त की। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर हुई हलाकतों के बाद आज भी जहरीली शराब पर रोक नहीं लग पाई है। राधे मां पर कई केस हुए दर्ज। राधे मां पर जिनसी हिरासानी, भक्तों को बहकाने, भोले भाले भक्तों को गुमराह करने, साबित कदमी की आड़ में नाजायज पैसे कमाने, तोहम परस्ती को हवा देने, मजहब को बदनाम करने, धमकी देने, फर्जी नाम से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने और एक औरत की शादी को तोड़ने जैसे इल्जामात लगे और कई दीगर मामलात में केस भी चल रहे हैं। इल्जाम को लेकर राधे मां को पुलिस स्टेशन में हाजिरी भी देनी पड़ी। हालांकि बाद में राधे मां को कोर्ट से जमानत मिल गई। जिया खान कत्ल से जुड़ा सूरज का नाम। 2015 में बॉलीवुड अदाकार और आदित्य पांचोली के बेटे सूरज पांचोली की फिल्म हीरो तो कमाल नहीं कर पाई, लेकिन सीबीआई ने कमाल जरूर कर दिया। जिया खान खुदकुशी केस में मुंबई पुलिस के नाकाम होने के बाद ये केस सीबीआई के सुपुर्द किया गया। सीबीआई ने चार्जशीट तैयार कर सूरज पंचोली को दफा 306 यानी खुदकुशी के लिए मजबूर करने के मामले में मुलजिम बनाया। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। तो इस तरह साल 2015 कानूनी फाइलों में जुर्म की ऐसी दास्तान दर्ज कर गया जो तवील वक्त तक याद रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो नाज़रीन, हमारी इस खुसूसी पेशकश का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।
चलिए ब्रेक के बाद अपनी इस खुसूसी पेशकश को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, 2015 में हुकूमत की इत्तेहादी जमात के साथ जो रिश्ता रहा उससे रियासत की सियासत में काफ़ी हलचल देखने को मिली और इसमें गौवंश हत्याबंदी कानून, कहत साली, किसानों की खुदकुशी, महंगाई, साथ ही साथ जराइम के बढ़ते वाक़यात ने फडणवीस हुकूमत के मेक इन इंडिया मिशन पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान ज़रूर खड़े कर दिए। तो नाज़रीन, आइए अब देखते हैं कि 2015 में रियासत की सियासी और माशी सूरत हाल कैसी रही। 2015 के दौरान महाराष्ट्र में सियासी, समाजी और माशी सूरत हाल में चढ़ उतार देखने को मिला। शिवसेना बीजेपी के बीच इख्तलाफात, बढ़ती महंगाई, हुकूमत पर बदउनवानी के इल्जामात, अदम रवादारी की लहर, अक़लियतों के मुताल्लिक़ हुकूमत के मुतनाज़ा फैसले और खुश्क साली वगैरह ने रियासत की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर किया। आइए देखते हैं कैसा रहा साल 2015। 2015 में बीजेपी शिवसेना के बीच टकराव का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस एनसीपी के 15 साला हुकूमत के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़े पैमाने पर अक्सरियत हासिल हुई। असम्बली इंतखाबात के नताइज के बाद हुकूमत की तश्कील के लिए बीजेपी ने शिवसेना को मदऊ करने में पहल नहीं की, बल्कि एनसीपी का साथ हासिल करने का मौक़िफ़ जाहिर किया। ये शिवसेना के लिए सख्त इशारा था कि महाराष्ट्र में अब उसकी हठधर्मी नहीं चलेगी। अगरचे शिवसेना और बीजेपी ने बिलाखिर हुकूमत तो बना डाली, लेकिन पूरे साल बीजेपी शिवसेना के साथ सनम को जीने देंगे न मरने देंगे वाला रवैया इख्तियार किया, जबकि शिवसेना ने भी हर मामले में इत्तेहादी जमात के बजाय अपोजिशन का रोल ज्यादा अदा किया। 11 अक्टूबर को इंदू मिल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यादगार की भूमि पूजन प्रोग्राम में शिवसेना गैर हाजिर रही। इस रोज उद्धव ठाकरे बीड़ में सूखे से मुतासरा किसानों से मुलाकात के लिए निकल पड़े। दोनों पार्टियों के बीच टकराव का सिलसिला यही नहीं रुका। शिवसेना ने बीजेपी पर फौकियत हासिल करने और अवाम के दिल में जगह बनाने के लिए पुणे और मुंबई में गुलाम अली के प्रोग्रामों को मनसूख कराया। इसके बाद साबिक पाकिस्तानी वजीर खारजा खुर्शीद महमूद की किताब की रस्म इजरा में हंगामा किया। बाद अज़ां पीसीबी चीफ शहरियार खान की मीटिंग में तोड़फोड़ की। दिसंबर में नागपुर इजलास में अलग विदर्भ के मामले पर भी शिवसेना ने बीजेपी की सबसे ज्यादा मुखालिफत की। कहत साली का असर और किसानों की खुदकुशी। इस साल कम मिकदार में बारिश होने से फसलों की पैदावार सही नहीं हुई। ले देकर जो फसलें बची थी उन्हें गैर मुतवक्का बारिश ने बर्बाद कर दिया। अगरचे महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत के 1628 देहातों को सूखे से मुतासरा इलाका ऐलान किया है, लेकिन अभी तक किसानों को अमली तौर पर राहत नहीं मिल पाई। 2015 में भी किसानों की खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा ही होता रहा। विदर्भ और मराठवाड़ा दोनों इलाकों के कुल 19 अजला में सबसे ज्यादा खुदकुशी के वाक़यात रोनुमा हुए हैं। महकमा राहत और बाज़ाबादकारी के मुताबिक 2015 में अगस्त से सितंबर तक 3 महीनों में सबसे ज्यादा 1016 किसानों ने खुदकुशी की है। अगस्त में 350 किसानों ने खुदकुशी की। वहीं सितंबर महीने में 329 किसानों ने खुदकुशी की, जबकि अक्टूबर महीने में 332 किसानों ने खुदकुशी की। सूखे की वजह से रियासत में पीने के पानी का भी मसला खड़ा हुआ। 2015 में मराठवाड़ा के डैमों को जुनूबी महाराष्ट्र से पानी दिए जाने पर भी खूब सियासत हुई। नासिक और अहमदनगर अजला के इलाके की किसानों के साथ साथ सियासी जमातों ने भी मुखालिफत की। हुकूमत पर बदउनवानी के इल्जामात। हुकूमत के शफाफ तरीक़ेकार के दावों के बीच हुकूमत के कुछ वज़रा पर बदउनवानी के इल्जाम भी आयद होते रहे।
خصوصاً ریاستی وزیر ونود تاوڑے کا نام پیش رہا، جبکہ پنکجا منڈے پر چکی گھوٹالہ اور خود دیویندر فڑنویس پر وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ کا غلط استعمال کرنے کے الزامات سامنے آئے، جس پر اپوزیشن نے حکومت کو جم کر آڑے ہاتھوں لیا۔ مہنگائی کی مار۔ 2015 میں ریاست میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ دیکھنے کو ملا، خصوصاً سبزیوں اور دالوں کی قیمتوں نے عوام کی کمر توڑ دی۔ سب سے زیادہ پیاز اور تور کی دال مہنگی رہی، جہاں پیاز 100 روپے فی کلو فروخت ہوئی، وہیں تور دال 250 روپے فی کلو بیچی گئی۔ وزیر خوراک گریش باپٹ پر دالوں کے ذخیروں پر چھاپا مار کر بدعنوانی کرنے کا بھی الزام لگا۔ عدم رواداری کی لہر۔ مہاراشٹر میں بھی عدم رواداری پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بننا پڑا۔ فروری میں مزدور لیڈر گووند پانسرے کا قتل ہوا۔ جانچ میں دیری کو دیکھتے ہوئے برہم ادیبوں نے ایوارڈ لوٹانا شروع کیا۔ مراٹھی زبان کے 9 ادیبوں نے حکومت مہاراشٹر کو ایوارڈ اور انعام کی رقم واپس کی۔ وہیں مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے اردو کے ادیب اور شعراء فرقہ پرستی کے خلاف صف آرا ہوئے۔ 7/11 ممبئی ٹرین دھماکے فیصلہ۔ 2015 میں جہاں 1993 ممبئی سلسلے وار بم دھماکے کے مجرم یعقوب میمن کو پھانسی دے دی گئی، وہیں 7/11 ممبئی سلسلے وار ٹرین دھماکے میں بھی خصوصی عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس معاملے میں عدالت نے 5 افراد کو سزائے موت سنائی، جبکہ ایک کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ واضح رہے کہ اس فیصلے سے 1 ماہ قبل ایک شخص کو اسی معاملے میں باعزت بری کیا گیا تھا۔ میک ان مہاراشٹر مشن۔ فڑنویس حکومت نے ریاست کی ترقی کے لیے زراعت کے بجائے صنعت کاری کو اہمیت دینے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ 2015 میں کئی غیر ملکی دورے کر کے سرمایہ کاروں کو ریاست میں لانے کی کوشش کی۔ کل ملا کر حکومت کے لیے 2015 منصوبہ بندی کے لیے وقف رہا۔ اب حکومت دعوے کر رہی ہے کہ 2015 میں تیار کیے گئے منصوبے آئندہ 3 سے 4 سال میں مکمل ہوں گے۔ امید کی جانی چاہیے کہ حکومت کے دعوے آئندہ سال عوام کے لیے عملی طور پر صحیح ثابت ہوں گے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آداب۔